my dear students, and welcome to the new lesson. So in this lesson we will learn about the format of C program. So whenever writing a C program, you strictly have to follow one format, and this is the format in which every program should be written. So let us see the statements one by one. So first statement of the C program is the comment. So you know what is mean by comment. So comment means telling something about the program. So that could be the name of the program or the writer of the program, or it can be anything. So always comment starts with /star, and whatever you want the comment of the program or whatever you want to tell about the program, that should be written between /star and /. So there could be multiple line of comment also. Number of lines भी comment हो सकता है. Simply you have to start from /star and end with // like this. So this can be the multiple line comment. So this number of lines, and after that you have to end the comment with // So whatever lines between /star and // will be considered as the comment. And remember that comment is not for the computer. So comment is for the programmer. Computer will not execute the statements between /star and // जो भी आप इन दोनों के बीच में लिखते हो, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है. एक्चुअली इट इज़ फॉर द यूज़ ऑफ प्रोग्रामर. प्रोग्रामर के यूज़ के लिए है. प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में है, या फिर किसने लिखा है, या फिर नीचे वाले स्टेटमेंट किसके लिए है. So actually this is for the documentation purpose of the programmer, and also it is not necessary, it is not mandatory to write the comment. Comment लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन it is a good practice to write the comment, because if you are having 10 or 15 lines of code, then okay, it is sufficient, then you will not write the comment because you know what the program is for. लेकिन अगर आपकी लाइन्स, बट इन रियल प्रैक्टिस और इन रियल प्रॉब्लम्स और इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, देयर कुड बी थाउजेंड्स लाइन ऑफ प्रोग्राम. एट दैट टाइम प्रोग्राम किसके लिए है ये पहचानना प्रोग्रामर के लिए भी उस समय क्या हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है. सपोज एक प्रोग्रामर ने 1 साल पहले कुछ तो भी कोड लिखा है. सो मेंटेनेंस के लिए सपोज वो प्रोग्राम उसके पास आता है, तो 1 साल पहले उसने क्या किया था उसको पता नहीं होगा, वो भूल जाएगा. सो इसीलिए प्रोग्रामर हमेशा कमेंट का यूज़ करते हैं कि कमेंट जो या नीचे दिया हुआ प्रोग्राम है किसके लिए है, या फिर नीचे दिया हुआ फंक्शन किसके लिए है, या फिर नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स उसने किस लिए लिखे हैं. सो ये चीज़ बताने के लिए प्रोग्रामर विल यूज़ द कमेंट, नॉट द कंप्यूटर. कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट ही नहीं करता है. ऑल्सो it is not mandatory that comment will be the first statement of the program. Comment could be anywhere in the program. comment प्रोग्राम में कहीं पे भी हो सकता है. जहाँ पे आपको कोड के बारे में कुछ लिखना है, then you can write the comment here also. So comment पहली ही लाइन है ऐसा नहीं है. comment कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, and also it is not mandatory that comment should be there. लेकिन it is good practice to write the comment for the use of programmer only. Okay. So then next statement of the program is #include in triangular bracket stdio.h. So what is actually this stdio.h? So this is actually the header file which is called as standard input output header file. Standard input output header file. सो व्हाट इज़ एक्चुअली द हेडर फाइल. सो अब हमको प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें करनी है. प्रोग्राम में हमको बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोग्राम में हम प्रिंट करते हैं, प्रोग्राम में मुझे इनपुट करना होता है, प्रोग्राम में कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमको प्रोग्राम में प्रिंट करना है. सो प्रिंट करने के लिए हम ऐसे कुछ तो भी लिखेंगे. ये हमको बाद में वी विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर्स.
So simply for just now, consider that we will print the value or we will print some message like this. कभी भी सी प्रोग्राम में अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो ऐसे लिखना होता है, प्रिंट एफ इन डबल कोटेशन। आपको जो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखना है वो हम डबल कोटेशन में लिख लेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट हाउ यू शुड प्रिंट ऑन द स्क्रीन। अब आप प्रिंट एफ लिखते हो, ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली ऐसे कुछ भी होता नहीं है। एक्चुअली देर इज अ प्रोग्राम बिहाइंड दिस फंक्शन। दिस प्रिंट एफ इज कॉल्ड एज द फंक्शन इन सी लैंग्वेज। फंक्शन मीन्स एक्चुअली इट इज अ रेडीमेड प्रोग्राम। प्रिंट एफ नाम का एक ऑलरेडी रिटन प्रोग्राम है जो आपने डबल कोटेशन में जो भी लिखा है वो प्रिंट कर देता है। सो ऑफकोर्स प्रिंट कर देता है यानी उसके पीछे बहुत बड़ा प्रोग्राम है। आप प्रिंट एफ बोलने से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं करेगा। एक्चुअली इट विल एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, दैट इज द प्रिंट एफ फंक्शन, एंड दिस प्रिंट एफ फंक्शन is written in the stdio.h file. Program of this printf function is in the header file, that is stdio.h, that is standard input output header file. अब अगर हम प्रोग्राम में हमारे मेन फंक्शन में अगर हम यूज करते हैं printf, then you should include the file with the statement #include stdio.h. Why stdio.h? Because this function is in stdio.h. अब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस यानी रेडीमेड प्रोग्राम्स किसमें लिखे हैं आपके stdio.h में। नंबर ऑफ फंक्शंस आर देयर ऑफ इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट के लिए जितने भी फंक्शन हैं सभी फंक्शन कौन से हेडर फाइल में है, stdio.h में। और अगर वो फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं देन वी विल इंक्लूड द stdio.h फाइल। अब कंसीडर करो, सपोज मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है। सपोज आई वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 25। So to calculate the square root of 25 there is a ready-made function which is called as the sqrt. स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको खुद का कुछ प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। सो देर इज अ रेडीमेड प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट विच इज sqrt. सो आई विल राइट sqrt of 25 to calculate square root of 25. So this function will give you the value 5 automatically. So of course automatically means there is a ready-made program which is called as sqrt which will be executed if you write this. लेकिन अगर आप आपके प्रोग्राम में sqrt यूज करते हो, आपके प्रोग्राम में कहीं तो भी sqrt अगर यूज हो रहा है देन आई शुड इंक्लूड अनदर हेडर फाइल विच इज कॉल्ड एज math.h. सो आई राइट इट हियर लाइक दिस #include math.h. So that means there can be many include statements here. यहाँ पे नंबर ऑफ इंक्लूड स्टेटमेंट हो सकते हैं एंड दैट सेक्शन ऑफ द सी प्रोग्राम इज कॉल्ड एज द इंक्लूड सेक्शन वेर यू विल इंक्लूड द हेडर फाइल्स. सो ऑफकोर्स ये तो हो गया आपके stdio.math.h के बारे में. अब math.h में भी बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस है. अगर वो आप आपके प्रोग्राम में यूज करते हो देन यू हैव टू इंक्लूड द math.h. और अगर कोई रेडीमेड फंक्शन आप आपके प्रोग्राम में यूज करते हो then that file also you have to include in the include section. So there can be number of include statements here. So it depends on the functions which you will be using in our program. आपके प्रोग्राम में आप क्या क्या यूज करते हो फंक्शंस, अकॉर्डिंगली आपको इंक्लूड करना होता है हेडर फाइल. So this is the first section of the program which is the include section. And after that next statement in the program is the main function. So actually main function is the name of every program or it is the name of every function that we will be using in a C program. And always program execution begins
with the main function. So actually this complete function, this function means program. So here you could understand, or you could remember that function is a program. So the program from opening brace to closing brace is considered as a function, and that function name is the main function. So that means every program of the C language is a main function, and always execution starts from the main function. Then opening brace. So this opening brace indicates the start of the main function. यहाँ से हमारा main function शुरू हो रहा है. Then the first part of the main function is the declaration section. So what is actually the declaration section? अब हमको प्रोग्राम करना है, दैट मीन्स वी वॉन्ट टू डू समथिंग, वी वॉन्ट टू डू सम कैलकुलेशंस और वी वॉन्ट टू डू सम प्रोसेसिंग. सो फॉर दैट आई विल बी रिक्वायरिंग वैल्यूज टू बी स्टोर्ड. अगर प्रोग्राम करना है तो ऑफकोर्स मुझे वैल्यू क्या करने होंगे, मेमोरी में स्टोर करने होंगे. सो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स. So to calculate the percentage of marks, I have to give the marks of values or the marks of subjects like physics, chemistry, math. That means I have to store the values of these marks. So ये marks store करते हैं हम हमारे memory में, and for that memory we will be giving a name. उस मेमोरी को हम क्या देते हैं, फिर एक्सेस करने के लिए नाम देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल नाम हर कोई अलग अलग दे सकता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई PHY नाम दे देगा फिजिक्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए, या फिर कोई पूरा फिजिक्स लिख लेगा, या फिर कोई P ही नाम दे देगा. ठीक है. सो ये नाम के रूल्स भी हम बाद में देखने वाले हैं. सो देर आर सम रूल्स टू गिव द नेम्स टू द वैल्यूज. सो एनीवन कैन और all of you can give different names to the values, and that names we have to specify in the declaration section. अब जैसे सपोज मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के मार्क्स स्टोर करने हैं, then I will give the name as PHY, CHEM, then math. और आप P, C, M ऐसे भी दे सकते हो. So simply you have to declare to the computer that these are my names. Declaration section में आपको आपके नाम बताने पड़ते हैं कंप्यूटर को कि मेरे मेमोरी वेरिएबल को नाम क्या देने हैं. सो पूरे प्रोग्राम में जितने भी वैल्यूज रहेंगी वो सभी वैल्यूज के नाम और उनके टाइप की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू इंटीजर है या फिर रियल वैल्यू है, वो डेटा टाइप भी हमको यहाँ पे लिखना होता है. सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल इन आवर लेटर लेसन्स ऑल्सो. सो जस्ट फॉर नाउ कंसीडर हियर. सो दिस डिक्लेरेशन सेक्शन कंटेन्स the name of the values and its data type, means its type of value, whether it is integer value, real value and so on. So this is the declaration section which tells about the number of values we will be using in our program. So after the declaration section, then the logic of the program begins. उसके बाद में एक्चुअल प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट्स होंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इनपुट करना है तो इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट, या फिर एडिशन करने के लिए स्टेटमेंट, परसेंटेज निकालने के लिए स्टेटमेंट, परसेंटेज को प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट. सो ये सब स्टेटमेंट बाद में आएंगे विच इज़ कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटेबल सेक्शन. सो हमको सी लैंग्वेज में यही पढ़ना है कि हाउ टू राइट दीज एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, कैसे हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं कि कंप्यूटर से कुछ काम करवा सके. So this is the format, this is the executable section, and lastly program ends with closing brace which indicates the end of the main function. यानी यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, and this is the end of the program. And in this manner we will be writing every C program. So this is all for now. In the next lesson, we will be coming up with new learnings. Thank you.